Namaskaram and welcome all to the second episode of Paranika. It's an interactive series that has been started by Nitya Darpan Kala Academy, and today our guest is going to be, I hope you all are able to hear me, okay? Hi. So today our guest is going to be my Thai or my Guru, Srimati Tamanna Tai Nair, and many of you know, she's a well-known exponent of Bharatnatyam dancer, and she has been awarded many awards are there. She has received many awards, and some to name a few, she is Nitya Kala Chudamani Award she has got, then Guru Ratna Puraskar she has got. So there are various awards she has got, but the main identity that I find is very important, that is one of the best identity she carries with her, is that she is a student of Poonam Tai Murdeshwar. Poonam Tai is again my guru, and the second identity that she carries today is, I think it's a very unique identity that very few guru in the today's generation, very few guru has this identity, that she has still maintained the traditional Bharatnatyam form. The syllabus or the things that she teaches a student are that of the traditional way, that is she follows the traditional aspect of Bharatnatyam, which is very important. This is the main thing, that I feel he is getting lost in this generation or in the due course of time, but she has maintained, and I feel very proud that she is one of the few guru, and she is my guru, who has maintained this thing for a long for quite a long period, and she still carries that tradition which she has received from her guru. So I like her to join for today's video. So Tai, I request you to join me. Being from Bombay, that is, she has her classes at Thane, but yet being from such a such a area, that is where you don't have so much of traditionalism, that is in Maharashtra, and yet she has maintained the culture so well, the Bharatnatyam culture so well, which we rarely find in today's generation. So that is, I feel, that is her main identity or main aspect, and today she will be joining us. Today she will be joining us to talk about the Guru Shishya Parampara, so, and also about the westernization. Also, if any one of you have any query, please you can ask her. She's there. Is getting connected. Okay. Yeah. Hi. नमस्ते. कशी आहेस? हॅलो, हाय. मस्त एकदम. तू काय म्हणते? मस्त. This is one of the aspects. She always has a smile on her face, and whoever sees her, they also get a big smile on their face. That is the positivity she carries in her dance, in her daily life also. Thank you. Thank you. मी तर तुझा इंट्रो दिलाय, तुला काय अजून if you want to. No, you've already spoken about me. तू already माझ्याबद्दल सांगितलं आहेस ना. Okay, am I audible properly? मी ऐकू येते सगळ्यांना? येते ना, क्लिअर येते ना? या. सो काही नाही, तू माझ्याबद्दल ऑलरेडी सांगितलेलं आहेस. सो that's more than enough. We can start with. Yeah, can start. Okay. So Tai, आजचं आपलं that, like we decided ki today's topic is going to be the Guru Shishya Parampara. Guru Shishya Parampara, like in the past years, that is in the ancient time, how we had ki Guru Shishya, a Shishya used to stay with a guru or in a Gurukul for a certain period of time, where he used to, he used to get follow all the rituals and all, and he was able to get the knowledge more clearly. But in due course, this thing has got vanished, or it has faded out. So what exactly is Guru Shishya Parampara in today's generation, and how it affects a student life, like, and why it is important, like from a student point of view, why it is important? Yes. So it's a very nice question. First of all, Guru Shishya Parampara.
So first I would like to say Om Shri Gurubhyo Namaha. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. You all know the importance of Guru. The Guru is the one who is the creator, the preserver, and the destroyer. He is the only one who will take you to the right path. Okay. So Guru Shishya Parampara म्हटलं तर I'll speak in all three languages. Is that fine? Okay, no? Okay, I think Hindi, English ज़्यादा better होगा तो सबको समझ आएगा. Yeah. Okay. So the thing is that Guru Shishya Parampara जैसे like you said, कि गुरुकुल पद्धति तो पहले कैसे होता था, तो हम ये बहुत से पहले नॉट ओनली इन डांस बट धनुर्विद्या है या कुछ भी जैसे माइथोलॉजिकल स्टोरीज में भी सुनते आए हैं. They had to go to the particular ashram, they had to stay there, they had to पूरा नॉलेज उनको वहां से लेकर वो जब उस धनुर्विद्या में पूरी तरह से माहिर होते थे तभी मतलब एक योद्धा बन जाते थे, तभी उन्हें खत्म करके उन्हें फिर अपने अपने घर जाने की वो सहूलत दी जाती थी. तो कैसे कि गुरु शिष्य परंपरा भी nowadays you can't find that, of course, because life has changed. You all know life has completely changed. पुराने जमाने में people had time और उतना डेडिकेशन था, टाइम से भी ज्यादा उतना डेडिकेशन था. तो जैसे कि अभी आप जानते हैं कि चेन्नई में कलाक्षेत्र है, so they still follow the same पद्धति, which I'm very happy. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो अभी भी उसी पद्धति को फॉलो करते हैं कि वो गुरुकुल पद्धति है. Completely you have to stay there, you have to learn right from the basic till the entire मतलब आप जब तक पूरा मार्गम नहीं अच्छे से सीख लेते उसको तब तक आप एक अच्छे आर्टिस्ट करके आप नहीं जाओगे. तो गुरु शिष्य परंपरा वही है कि आज मैंने अपने गुरु से सीखा, मैंने गुरु से सीख के उस कला को मैंने अपने बच्चों को सिखाया, अपने स्टूडेंट्स को सिखाया, तो वही स्टूडेंट ने मेरी कला को और आगे बढ़ाया. तो इन द सेम वे, नॉट कि आज मैंने कुछ सिखाया तो स्टूडेंट ने कुछ और सिखा दिया, ऐसे नहीं होता. अगर मैंने उसको स्टेप वैसे सिखाई है तो उसी तरह वो बच्चा स्टेप अपने बच्चों को उसी तरह, अपने शिष्य को उसी तरह सिखाना चाहिए. So this is how the Guru Shishya Parampara will go, Like I am lucky that my whatever I got is all from my mother. Okay, so my mother, whatever she got it from her gurus. And what happened कि वो टाइम ऐसे था कि वो जो सीखते थे वो उन्होंने एकदम अच्छे से प्रिजर्व करके रखा था. और आज भी अगर आप उनके गुरु ने सीखी हुई चीज पूछोगे तो उनको बहुत अच्छे से वो याद रहती, क्योंकि उन्होंने उसको बहुत अच्छे से प्रिजर्व किया है. And mainly for one thing I will tell you about the olden ancient times. पुराने टाइम में ऐसा होता था कि they used to teach a particular item. Okay, तो अगर आपको फॉर एग्जांपल नहीं, चलो आइटम नहीं, हम अडोस पकड़ते हैं. अगर अडोबोस सीखा है तो till the time you are not perfect in those adobos, they will keep on teaching you the adobos. अगर आपको तट्टा अडो 3 स्पीड में नहीं आता है तो वो एक ही स्टेप तट्टा अडो कि आपको 3 महीने 4 महीने 5 महीने यही सिखाएंगे, फिर आप कितने भी बोर हो जाओ. Either you leave the class or you learn. This is how it used to be. And one more thing, for your Anga Shuddhi, they will give you a nice whack with the stick. मारते थे पहले के गुरु, बहुत मारते थे. मतलब मैंने जितना सुना है, हमें वो मार पड़ी नहीं, लेकिन हमें स्ट्रिक्टली बोला गया कि इस तरह से करना चाहिए. लेकिन जो मम्मी का टाइम था, मैंने वो सुना है कि उनके पैर पे पट्टी मार दी जाती थी कि इफ यू आर नॉट सिटिंग, इफ यू आर नॉट डूइंग प्रॉपरली, दे यूज्ड टू गिव अ नाइस whack with the stick. सो वो स्टिक नहीं खानी चाहिए करके हमें परफेक्शन करना है. सो दैट परफेक्शन वाज डेवलप्ड. दैट इज द रीजन वो परफेक्शन आज भी इतना परफेक्ट है कि वो मिस्टेक कभी उनसे होती नहीं है. सो द थिंग इज दैट्स व्हाट आई से, वंस यू आर थरो विथ इट दे विल नॉट टीच यू. सो वो गुरु का वही होता है कि जो आपने जो ट्रेडिशन सीखा है उस ट्रेडिशन को जब आप फॉलो करते हो तो even people will notice that कि नहीं, she is following this tradition. She is following the Tanjore Bani. No, she is following the Kalakshetra Bani. It only comes when you follow that tradition properly. Otherwise, no. So this is how it goes. Okay. Now tell me कि
that is no कि acceptance of guru, like with the time, many of the times ऐसा होता है कि parents come for the inquiry, the students come for the inquiry, but many of the time they don't trust the guru completely, which is I think one of the drawback कि अगर आप कहीं पे join कर रहे हो, if you're undergoing any guru or you're going to learn something from a guru, you need to have a vishwas, or that bond should be there between the guru and the shishya. So what you will say about that? See, first of all, I would like to just say this, say that, first of all, when you are deciding to join a dance class, okay, or any class for that matter, आप कोई क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो, गाना हो, डांस हो, जो भी हो, आपको डायरेक्टली पता नहीं होता है कि कोई गुरु अच्छा है या बुरा है, यू डोंट नो, राइट? सो इट्स सेम लाइक जो आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल अच्छी आपको पहले पता नहीं चलती. Once you start learning, you know how good and bad it is, right? So the thing is that कि एक मतलब क्या बोलते हैं उसको? I just skipped your question. This question क्या होता? My question was कि acceptance of guru. Acceptance of guru, right? Yeah, sorry. So the acceptance of guru is like, for example, there are I just want to say this openly. There are classes, there are classes they put a lot of banners, okay? Big banners for their dance class. big banners, big boards for their dance class, showcasing a lot of, fine, you want to advertise your classes, you can advertise. I have no objection. I'm no one to, criticize anybody. या मैं वो नहीं बोल सकती हूँ कि भाई आप ऐड कर रहे हो गलत. मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब बड़े बड़े बैनर लगाते हो या फिर ऐड करते हो, तो आप एक गुरु करके फिर आप डांस क्लास में आपके जो बच्चा आपके पास सीखने के लिए आता है, फिर आप उसको उसी डेडिकेशन के साथ सिखाओ. If you are putting your name as a big guru, and you are also showcasing that I have 200 students, I have 500 students, I have so and so students, okay, you're just showcasing yourself, and उधर आने के बाद पूरा बोलते ना खाली है, वहां पे कुछ आप दे नहीं रहे हो, सिर्फ ले रहे हो. So then it's a difficult thing to judge a guru. First of all, मैं यही बोलूंगी ना कि गुरु मिलना, अच्छा गुरु मिलना is like a jackpot. Yeah. It's like a jackpot, and it is a matter, मतलब वो बोलते हैं ना कि आपका लक, आपका नसीब, आपका लक होना बहुत जरूरी है एक अच्छा गुरु आपको मिलने के लिए. पहली बात तो अगर गुरु अच्छा है तो उसे अपने आप को कहीं जगह जाके एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है. He will never advertise, he or she, that guru will never go and advertise, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा सिखाता हूँ, मुझे अच्छे से आता है, मेरी कला ऐसी है, मेरा ये कभी कोई गुरु नहीं बोलेगा. उस गुरु को अगर सिखाना है तो वो उतने दिल से ही उसको सिखाएगा. तो मैं एक ही बात बोलूंगी कि अगर कोई क्लासेस ज्वाइन करने के लिए जब जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी के बातों से तो हम लोग तो आजकल इतने मतलब होशियार तो है कि किसी से बातों से हम पहचान जाते हैं, ओके, कि कोई किस तरह से हमसे बात कर रहा है, उस बात से हमको पता चल जाता है कि गुरु कैसा है या फिर वो व्यक्ति कैसी है. गुरु से भी ज्यादा वो व्यक्ति कैसी है. तो मैं बोलूंगी जब आप उनको जानना चाहते हो तो मैं कहूंगी कि आप उनसे पहले पूछो कि हम ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, एंड आप अगर हमें परमिशन देंगे कि हम आपके क्लास में आके एक 4-5 बार अगर हम आके बैठ सकते, क्या आप हमें ये परमिशन दोगे कि हम आपके क्लास में आकर बैठ के आपका क्लास देखना चाहते? I always, Poonam Dai, मैंने always had that. Whoever will come for admission, she will always say that, आप एक काम करो, आपको क्लासेस ज्वाइन करना है, आप करो, लेकिन आपको पता है कि भरतनाट्यम क्या है, आपको पता है कथक क्या है, आपको पता है सो एंड सो स्टाइल क्या है. तो वो बोलेंगे नहीं हमें नहीं पता. तो आप एक काम करो, आप जब हमारे क्लास चलते हैं ना, ये टाइम पे हमारा क्लास चलता है, तो आप हमारे क्लास में आके बैठो, आप क्लास को ऑब्जर्व करो, क्लास को देखो, फिर आपको पता चलेगा कि हम क्लास में क्या सिखाते हैं और क्लास में क्या होता है. तब आपको ये स्टाइल पता चलेगी कि ये क्या है. सो दैट इज व्हाट अ गुरु शुड फर्स्ट डू, दैट एटलीस्ट हर एक कोई तो ऐसे नहीं अपने आप से आता नहीं, किसी को पता नहीं कि भाई ये स्टाइल कौन सी. अभी बहुत बार सी इवन यू आर टेकिंग क्लासेस, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हेन दे कम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भरतनाट्यम एंड कथक. दे ऑलवेज आस्क व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भरतनाट्यम एंड कथक. सो अभी अगर उनको डांस का नॉलेज ही नहीं है तो हम उनको डिफरेंस कैसे समझेंगे?
हाँ, तो उस डिफरेंस को समझाने के लिए हमें उनको दिखाना पड़ेगा ना कि ये कथक है, ये भरतनाट्यम है. सो वी हैव टू गाइड देम टू इन अ वे कि भाई वो उसको अच्छे से फॉलो कर पाए. ऐसे. सो एक्सेप्टिंग अ गुरु इज द वे यू अप्रोच द गुरु. You know, आप जिस तरह से उनको अप्रोच करते हो, आपको जितना उनको मतलब कभी कभी एक होता है ना, हमें किसी को देख के वाइब्स आ जाते हैं. यू फील पॉजिटिव अबाउट दैट पर्सन कि नहीं, अरे मैं इनको मिली हूँ तो मुझे उनको मिलके अच्छा लगा, उन्होंने मेरे से बहुत अच्छे से बात की, या फिर उन्होंने मुझे गाइडेंस बहुत अच्छे से दिया. सो व्हेन यू मीट दैट पर्सन इटसेल्फ यू फील नो आई थिंक शी विल बी the right person for me, she will be the right guru for me who will give me that knowledge, that kind of a knowledge which I want. So इस तरह से फिर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो नहीं करो वो आपके ऊपर होता है. So your approach is important. बट व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग दैट इज बहुत बार ऐसा भी होता है कि द स्टूडेंट स्टार्ट लर्निंग एंड इवन इफ द गुरु इज प्रॉपर समटाइम पेरेंट्स की तरफ से भी काफी बार इंटरफियरेंस होता है कि व्हाट माय किड इज डूइंग. तो डोंट यू थिंक कि इट इज बेटर कि जब हम बच्चे डायरेक्टली कनेक्ट हो, मतलब इवन जैसे यू सेड कि इवन आई रन अ क्लास, तो मेनी ऑफ द टाइम्स देयर आर टू कैटेगरीज. एक होता है जहाँ पे बच्चे मेरे से डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, वॉट एवर दे हैव अंडरस्टूड दे आर हैविंग डाउट, तो इट बिकम वेरी इजी टू रेक्टिफाई द थिंग्स और टू कम्युनिकेट. लेकिन वही चीज जब वाया वाया आती है, दैट इज इफ इट इज कमिंग फ्रॉम अ पेरेंट्स, so we feel अरे directly if should have asked that time in the last class only it would have been easy to clarify. तो ये जो है तो many of the times ये भी होता है कि there are parents who tell their kid, मतलब from I'll take my example only. My mom जब से मैंने डांस क्लास ज्वाइन किया from my earlier guru also, she never came. मतलब तेरे को छुट्टी चाहिए, you go and take the permission. I will not ask your guru anything. मेरा जॉब था तेरे को एडमिट करना क्लास में. I have joined you. आगे तेरे को छुट्टी चाहिए या whatever you have not understood, it is your responsibility, it is your duty to communicate with your guru. So, तो आज की तारीख में मतलब earlier parents were like that. I don't know, but today's parents are like उसने यूनिफॉर्म नहीं पहना, दिस वाज द रीजन, वो अभी क्लासेस से आई, ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया. दिस रीजंस, दिस थिंग कैन बी ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में डायरेक्टली. सो दिस कम्युनिकेशन कितना हिंडर करता है? इट मैटर्स अ लॉट एक्चुअली. तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, ये आज मैं भी फेस करती हूँ, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि पेरेंट्स शुड इंटरफियर ओनली व्हेन द गुरु वांट्स द पेरेंट्स टू इंटरफियर. यस, अगर जब गुरु चाहता है कि भाई हमको आपके पेरेंट्स से बात करनी, तो वो बच्चे के थ्रू उस पेरेंट को मैसेज दे सकता है. ओके, पेरेंट्स एक्चुअली शुड नेवर इन्वॉल्व इन व्हाट द टीचर एंड स्टूडेंट, वो रिश्ता उनका क्या है उसके बीच में पेरेंट्स ने नहीं आना चाहिए. क्योंकि एज अ गुरु हम लोग माँ और बेटी के रिलेशनशिप में जाते हैं क्या? नहीं जाते. वी डोंट वांट टू नो व्हाट रिलेशनशिप दैट चाइल्ड इज हैविंग विद हर मॉम. For me, as a guru, it is important what relationship I have with that student. Okay. Another thing about the uniform, about the thing, about the other rules that we have to follow. मुझे एक बात आपसे पूछनी है. हम we are born, हमारे मतलब बोलते हैं कि कल्चर है, ठीक है? We are born with some kind of a culture, some kind of a tradition that we have, right? तो जैसे अब मैं बहुत बार देखती हूँ, मतलब मुझे अभी ये मेंशन इसलिए करना है कि हिंदू है कोई, ओके, अभी हमारे हिंदूज में कितने सारे फेस्टिवल्स है, कितनी सारी चीजें हैं. सो हमारे फेस्टिवल का भी कुछ इम्पोर्टेंस है. तो वो इम्पोर्टेंस ऐसा है कि उस फेस्टिवल के दिन हम ये करते हैं, खाना बनाते हैं, वो कुछ स्पेशल खाना बनता है, कुछ स्पेशल कपड़े हम पहनते हैं. जैसे कि महाराष्ट्रियंस है तो महाराष्ट्रियंस में गुड़ी पड़वा है, ऐसे कुछ है तो हम कुछ यात्रा करते हैं तो वी वेयर अ नववारी साड़ी. सो वी हैव दैट ट्रेडिशन, राइट? सो इट इज सम काइंड ऑफ अ डिसिप्लिन दैट हमारे पूर्वजों ने हमारे में वो डाला हुआ है, राइट? नो फॉर दैट मैटर आप मुस्लिम्स है तो रमजान पकड़ लो, तो या क्रिश्चियंस है क्रिसमस पकड़ लो. तो हर एक कमी मतलब हर एक जाति का हर एक कोई ट्रेडिशन है, तो एवरीबडी इज फॉलोइंग दैट ट्रेडिशन. आई वुड लाइक टू मेंशन दिस कि बहुत बार मैंने क्लास में एक बार देखी है, मेरे ऑब्जर्व किया है रादर. आई हैड द स्टूडेंट्स who are Muslims, I have students who are Christians, but they are following my discipline, what discipline I teach them. यूनिफॉर्म पहनना है, बिंदी लगानी है, बीइंग अ मुस्लिम. हाँ, मैं बता रही हूँ
लड़की मुस्लिम है, फैमिली ने कोई ऑब्जेक्शन कभी लिया नहीं है। ठीक, बिंदी लगाना उनमें अलाउ नहीं होता है, लेकिन फिर भी for the classes I have seen that girl regularly wearing a bindi, bangle, पूरा कपड़ा घुंघरू अच्छे से, मतलब मुझे कभी बोलना नहीं पड़ा। वो क्रिश्चियन हो, वो मुस्लिम हो, मुझे उनको कभी बोलना नहीं पड़ा। ये मुझे खास मेंशन इसलिए करना है कि वो अगर अदर कास्ट के होके उनमें अलाउ नहीं होके वो बच्चे अगर वो फॉलो कर रहे ट्रेडिशन, उनके माँ बाप उनको वो डिसिप्लिन सिखा रहे, तो हमारे हिंदुओं को क्या प्रॉब्लम? And one thing, see, the problem, I don't want to say that, मैं इसलिए रूडली बोल रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि डिसिप्लिन मैटर करता है। और आपको डिसिप्लिन क्लास में, हमने आपको क्लास में 4 घंटा तो रोक के नहीं रखा है, हमने आपको क्लास में ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 घंटा रोक के रखा है। तो उस 1 से 1.5 घंटे में भी पेरेंट्स आके रीजन देते हैं, नहीं मैम उसको क्या हो गया ना, बर्थडे पार्टी में जाना है, नहीं मैम वो क्या हो गया ना, आज वो डायरेक्टली क्लास से आ गई तो उसको मैंने ड्रेस वो नहीं कर दिया। आप एक जोड़ी कपड़ा साथ में बैग में डाल सकते हो, आप उसकी जो भी इयररिंग्स है, जो भी एक्सेसरीज है, बैग में डाल सकते हो। आप 1 घंटा क्लास में, जितने देर आपका क्लास है, आप 1 घंटा वो पहनो, उसके बाद आप निकालो, आप अपने नॉर्मल कपड़े पहनो, आप जाओ, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बट एटलीस्ट व्हेन अ टीचर इज रिक्वेस्टिंग यू टू डू इट फॉर एन आवर, फॉर प्रैक्टिस, व्हाई कांट द पेरेंट्स do it? Why the parents are giving so much of reasons, which is very bad. Parents should not do, and कुछ मैंने देखे बच्चे डिसिप्लिन है लेकिन पेरेंट्स आर लाइक रीजन दे रहे हैं। Exactly. बच्चे डिसिप्लिन है लेकिन पेरेंट्स आर गिविंग द रीजन। समटाइम्स द चाइल्ड इज मोर ओपन विद द गुरु rather than their parents. अभी कुछ चीज कभी कभी बच्चे घर पे नहीं खाते हैं ना, तो पेरेंट्स आके बोल देते हैं मैम उसने ये नहीं खाया, लेकिन अगर मैंने उस बच्चे को या कोई गुरु ने उस बच्चे को बात समझा दी या बोल दी, तो वो बच्चा वो खाना खा लेता है। क्यों? क्योंकि नहीं गुरु ने बताया। तो वही जैसे बोलते हैं ना, आप उसको किस तरह से बोलते हो, किस तरह से डालते हो, ये मैटर करता है। सो यूनिफॉर्म बोलो, घुंघरू बोलो, ये आप जब ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म सीखते हो, मेरी सबसे ये विनती है पेरेंट्स को स्पेशली, whoever parents are watching or कल देखेंगे, तो मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि दिस इज अ ट्रेडिशनल थिंग दैट आप कुछ कल्चर इसको फॉलो करना है आपको, ठीक है? आप बच्चों को कुछ अच्छी चीज सिखा रहे हो। हाँ, जैसे आप वेस्टर्न डांस है या कुछ है, तो उसमें आपको कपड़े उसी तरह से उसी ढंग से पहने जाते हैं, उसमें कोई किसी का ऑब्जेक्शन नहीं होता, बिकॉज द वे इट हैज टू बी ड्रेस्ड, इट हैज टू बी ड्रेस्ड, राइट? तो जहां पे जो करना है वो आपको करना ही है। आज मैंने ये नहीं किया, आज मैंने वो नहीं किया, ऐसे नहीं। तो यू हैव टू फॉलो सर्टेन डिसिप्लिन दैट इज देयर। तो पहले के टाइम पे तो व्हेन गुरु शिष्य परंपरा एंड ऑल दीज थिंग्स वर, पहले गुरु जो सिखाते थे, कंपल्सरी वी हैव टू स्टैंड इन हाफ साड़ी ओनली। वी वर नॉट अलाउड टू इवन वेयर अ पंजाबी ड्रेस। आप थाना से आओ, आप बड़ौदा से आओ, आप कहीं और से आओ, when you are standing in front of your guru, you are compulsory, you are supposed to wear, you're supposed to put bindi on your forehead, you are नहीं दिख रहा है, तुम्हारा कोई और नहीं शरीर नहीं दिख रहा है, तो उसको तुमको अच्छे से ढक, कुछ भी हो आपको अच्छे से उनके सामने खड़े रहना। रहते नहीं हो, उस दिन आपका क्लास नहीं होगा। तो आप बड़ौदा से भी आओ, थाना से भी आओ, बैठ जाओ, दे विल नॉट टेक योर क्लास। अभी अगर मैंने ऐसा किया, क्लास नहीं लिया, तो पेरेंट्स क्या बोले, 1 घंटा आके मेरी बच्ची ऐसी अंदर बैठी रही और आप मैम ने उसको ऐसे ही बिठा के रखा, मेरे बच्चे का क्लास नहीं लिया, जाओ 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 जाओ। So this is how, when you have to follow this. And one more thing, म्हणजे अभी जो आपने बोला कि the connection, तो it also matters, like I have observed कि जो कनेक्शन जिन स्टूडेंट्स के साथ गुरु गेट कनेक्टेड और एक कनेक्शन बन जाता है ना, it also affect their performance on stage. Of course it does. It does. It does a lot. Yes, it does. See, if you are, that's what I said, if you are that connected with your guru and if you are that मतलब आप जितना आपके गुरु को मानते हो, सुनते हो, तो definitely that tuning will be definitely there with the guru. वो स्टेज पे भी आप परफॉर्मेंस में भी दिखेगा, आपके डे टू डे लाइफ में भी वो दिख जाएगा।
मतलब बच्चे को ऐसा हो जाता है कि पहली बात गुरु को बोलनी होती है, ना कि पेरेंट्स को। कुछ भी उनकी लाइफ में अगर एक्साइटमेंट होती है तो दे ऑलवेज फर्स्ट वांट टू कम एंड टेल देयर गुरु। गुरु ऐसे, हाँ। So that is a different bond, of course. That's a different bond we have between our students and the teacher. and students. And the other point that you told ki non-Hindus. So even I have a student who are non-Hindus and they follow this, uniform. She will always be in uniform. I never Yes. have to mention her. Her name is also Natasha, so I don't have to mention it. You're not in uniform. She'll always be in uniform, no I've seen matter her what. last time. Yes. Yes. Yeah. I've seen her last time. Yes. Yes. That's true. That's what I'm saying. कि वो लोग अगर ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं, मैं वही बोली ना, मुस्लिम में बिंदी अलाउड नहीं है। तो मैंने उनके पेरेंट को ये भी बोला था कि नहीं देखिए आपके ट्रेडिशन में अलाउड नहीं है तो आप मत डालिए। तो उन्होंने बोला नहीं मैम। मुझे बहुत अच्छा लगा जब उसके पेरेंट्स ने मुझे एक बात बोला कि नहीं मैम, मैं आप ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो आपके पास आपका आर्ट सीख रही है ना, आपके आर्ट में ये डिसिप्लिन है। कल को जाके मेरी बच्ची को कोई प्रोग्राम में खड़ी रहेगी, हाँ, तो फिर उसमें प्रोग्राम में तो उसे ये सब करना ही पड़ेगा। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशन। तो मुझे एक 1-1.5 घंटे के लिए अगर मेरी बच्ची को ये सब करवाना है तो मुझे मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है। This was the same. ये नमस्कार करना also when I have asked the question, it's not your tradition, तो यही रिप्लाई उन्होंने दिया था। नहीं, ये नमस्कार करना, अभी जैसे हम उनको बोलते हैं अभी आंगिकम भुवनम यस्य, मतलब वो बच्ची थी, वो श्लोका भी इतने अच्छे से बोलती थी कि आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल दी अदर गर्ल्स कि अरे देखो ये शी बीइंग, अभी जैसे हम बोलते हैं ना कि घर में ट्रेडिशन होता है तो मुस्लिम मतलब अपना तो संस्कृत एंड ऑल ये सब तुमको अच्छे से बोलने आएगा। शी इज अ मुस्लिम, उनके घर में थोड़ी संस्कृत चलता है, बट स्टिल शी वाज सो थरो विद द श्लोकास। बट ताई एक संस्कृत से मेरे को पूछना है कि लाइक द एफर्ट्स दैट वी सी कि इन जर्मनी संस्कृत इज कंपल्सरी, बट इंडिया Indian school don't have Sanskrit. So this thing, how much it has entered the culture? It has. So that is the thing, no? Nowadays, घर पे भी ये सब संस्कार नहीं हो रहे। घर पे एक्चुअली मैं लास्ट टाइम मेरे लास्ट सेशन में भी मैंने ये बात बोली थी कि आजकल शाम को दिया लगाने की प्रथा चली गई है। आजकल दिया भी अपने मन से चलता है, भगवान भी अपने मन से चलता है, क्योंकि भगवान को भी पता है कि सब बिजी हो चुके हैं, टाइम। तो पुराने जमाने में ये था कि सुबह उठ के दिया लगाओ, शाम को इवनिंग में दिया लगाओ, फिर हम सारे श्लोकास बोलते थे, तो अभी मैं मतलब ऐसे कंपलसरी नहीं था कि कोई संस्कृत, पुराने टाइम पे संस्कृत घर में ही संस्कृत की पूरी प्रथा थी, घर में ही हमारे नाना नानी दादा दादी जो भी है वो सारे संस्कृत श्लोका सब बोलते थे। आजकल फैमिलीज भी सेपरेटेड है, नो वन, आधे से ज्यादा लोग तो जॉइंट फैमिली में रहते नहीं है, मैक्सिमम आर स्टेइंग सेपरेटली बिकॉज क्लैशेस है, प्रॉब्लम्स है, वॉट एवर इट इज। किसी किसी को नाना दादा मतलब ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है, तो ऐसे बहुत सी चीजें मैटर करती है। एंड स्कूल में पूरा अभी अपने इधर तो पूरा वेस्टर्न वो हो गया है, कल्चर हो गया है। सो एवरीबडी इज लाइक जर्मन ले रहे, फ्रेंच ले रहे, स्पेनिश मतलब everybody is not no one is taking interest in our Indian languages. मराठी का मराठी अपना है वो भी अभी कम होते जा रहा है। Many of the schools don't even have मराठी। तो घर में पेरेंट्स को ही बैठ के सिखाना पड़ता है कि भाई अपना स्टेट का लैंग्वेज है वो तो कंपलसरी आना चाहिए। तो ऐसा सिचुएशन है। सो फॉर दैट इज व्हाट, सो जो भी मैं वही बोलती हूँ ना कि ये सब एफर्ट्स घर में तो नहीं हो रहा है, इसीलिए एक गुरु ने ये श्लोका जो भी कुछ भी आप ले रहे हो तो ये गुरु ने ही अपने बच्चों से करा के लेना चाहिए कंपलसरी वर्ड्स। नहीं तो फिर यू एटलीस्ट जो सीनियर स्टूडेंट्स ने सीखा है तो टेल द सीनियर स्टूडेंट्स टू टेक दो श्लोकास फॉर द किड्स। व्हाई? बिकॉज फिर वो बड़े बच्चों के भी बाय हार्ट हो जाते हैं एंड छोटे बच्चों को भी वो थरली आ जाते हैं। वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी किधर भी डाल के हम उसको नहीं बोल सकते ना, ऐसा है। तो सेम जैसे इवन जनरेशन में यू विल फाइंड कि दे नो द इंग्लिश सॉन्ग, बट एक नॉर्मल द महाभारता का मंत्र दैट इज द यदा यदा ही धर्मस्य, दे डोंट नो लर्निंग भरतनाट्यम एंड येट दे डोंट नो दिस सिंपल श्लोका और दिस, इट इज वन ऑफ द आई डोंट नो व्हाट टू से, बट ऐसा है। तो
ऐसा है। थैंकफुली अभी लॉकडाउन की वजह से महाभारत फिर से लगाया था, तो बच्चों के मुंह में वो गाना बैठ गया, क्योंकि पेरेंट्स ने, थैंकफुली पेरेंट्स ने बच्चों को वो महाभारत एंड रामायण दिखाया. So I saw a lot of videos of small children singing the Mahabharata song and the Yada Yada Dharmasya. I said, I was happy. I said, very good. At least लॉकडाउन में ये तो हुआ, कुछ तो हुआ पॉजिटिव. तो कुछ तो माइथोलॉजिकल स्टोरीज बच्चों ने देखा. नहीं तो माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी आजकल बच्चों को पता नहीं है. दे डोंट नो हु इज द्रौपदी, दे डोंट नो हु इज पांडव, दे डोंट नो हु इज कौरव. ये सब है. And how important, now that you have removed this topic about the Mahabharata and all, please tell them, the students are also watching, so please tell them how important it is to know the Ramayana, the Mahabharata or the ancient story, mythological story. कि वो मतलब many of the time ऐसा होता है, दशावतार, if you are setting a दशावतार for example, तो रावण was in Ramayana or Mahabharata, सीता माता या द्रौपदी. Oh God. That's what I said. That's what I said. You know, it's like सब चीज का पीछे 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 चलते जा रहा है ना. मतलब जैसे अभी का स्टोरीज कुछ और ही आ रहा है. अभी तो नाउ यू आस्क देम स्टोरीज अबाउट एनी फिल्म, कोई फिल्म स्टार के बारे में पूछो, कोई पूछो, दे ऑल नो वेरी वेल, बिकॉज उनकी गलती नहीं है. यू नो, अभी वो एक्सपोज हो चुके हैं पूरी तरह से मीडिया से, है ना. तो दे आर कंप्लीटली इनटू दैट, दे आर वाचिंग ऑल दिस. सो उनका वो इन्फ्लुएंस ज्यादा वो हो गया है, यू नो. सो स्टोरीज अभी घर में पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है. पेरेंट्स ऑल्सो डोंट हैव टाइम. बट यू नो, आई मस्ट से दैट देयर आर सम इंस्टीट्यूशंस, यू नो, लाइक कोई तमिल समाज है या कोई कन्नड़ा समाज है, यू नो, दे आर यू नो स्टोरी सेशंस का एक अलग से वो सेशन लेते हैं फॉर द किड्स ओनली, यू नो. सो आई विल से कि ना, आप ऐसे फाइंड आउट करो कि आपके नजदीक कोई समाज है, कन्नड़ा बोलो, तमिल बोलो, कोई भी, यू नो, और एनीबडी हु इज टीचिंग ऑल दीज स्टोरीज. बिकॉज आई हैव सीन रिसेंटली, आई हैव नोटिस्ड, यू नो, कोई ग्रैंड पेरेंट्स है जिनके बच्चे अभी यूएस में है या आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड है. सो दोज ग्रैंड पेरेंट्स, यू नो, दे वांट टू स्पेंड सम काइंड ऑफ टाइम. तो वो लोग ने ये शुरू कर दिया है, यू नो, टू स्टार्ट टेलिंग स्टोरीज टू द किड्स, व्हिच इज अ वेरी नाइस इनिशिएटिव, यू नो. क्योंकि आजकल के वो सब वही बता रहे थे, आजकल के बच्चों को ना कोई पुराना भगवान का गाना पता है, ना कोई स्टोरी उनको पता है. तो अभी जैसे कि हम कोई भजन उनके सामने स्टेप भी, तो ये क्या भजन है, जैसे पुराने भजन हमने सुने हैं, लेकिन बच्चों को ये भजन ये क्या भजन है, ये नहीं सुना हमने कभी. हाँ, वो फिल्म में अगर भजन है तो हमको पता है, क्योंकि वो फिल्म में किसी ने गाया है, श्रेया घोषाल ने गाया हुआ भजन है, तो वी नो, राइट. बट पुराना टाइम में हु नोज, नोबडी नोज, नोबडी विल नो द वर्डिंग. सो आई विल से, अभी जैसे कि क्लासेस में भी आप टीचर्स को मैं हमेशा यही बोलती हूँ, जो भी व्हेनेवर आई टेक अ वर्कशॉप और यू नो कहीं जाती हूँ, तो मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ ना, कि क्लास में एक सेशन कंपलसरी आप स्टोरी करो. टेल अ स्टोरी फ्रॉम, एक स्टोरी लेके महाभारता से, एक स्टोरी अपना गणेशा का कोई स्टोरी बताओ, एक स्टोरी अपना शिव पार्वती का कोई स्टोरी बताओ, यू नो. टेल देम सच स्टोरीज इन एक सेशन क्लास में रख के, ताकि एंड देन व्हाट यू डू कि वो स्टोरी आप लेके बच्चों को एक दिन नरेट करने बोलो वो स्टोरी, यू नो, इन एक्टिंग फॉर्म. सो दे ऑल्सो विल लर्न थ्रू दैट, दे ऑल्सो विल लर्न. क्योंकि जब तक आप उनको वो टास्क नहीं दोगे, वो स्टोरी लर्न नहीं करेंगे. और आप उनके अपने बुक थमा दोगे तो बच्चे बुक पढ़ेंगे नहीं. पढ़ाई की बुक नहीं पढ़ते, ये बुक पढ़ के उनको क्या समझने वाला है. मतलब पढ़ा इन द सेंस कि कोई भी स्टोरी में जैसे बोलती हूँ, जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है ना, इसको आप थोड़ा अच्छे से उनको एक तरीके से बताओगे ना, तो दे विल टेक इट इजीली. उनको वो ग्रास्प जल्दी हो जाएगा और वो जल्दी समझ जाएंगे. लेकिन आपने उनका ऐसे ही बता दिया, ये लो भाई तुम बुक लेके आओ, मैं पापा बोले मैं तुम्हारे लिए इतने बुक लेके आया, तुम लेके पढ़ो, बच्चा नहीं पढ़ने ना. पढ़ने की बात नहीं, अगर पढ़ के उसको समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए अच्छा यू टेल द कैरेक्टर्स, टेल द किड व्हाट इज द स्टोरी, किसके बारे में है, क्या कर रहे, दे विल एन्जॉय मोर. नाटक आपण म्हणतो ना, नाटक रूपामध्ये केलेल्या गोष्टी मुलांना जास्त आवडतात, है ना. तर ते बघायला त्यांना जास्त मजा पण वाटते. जसं आपण टीव्ही नॅचरली ते लोक एवढे कार्टून्स वगैरे बघतात, ते कार्टून्स एन्जॉय करतात, बिकॉज त्याच्यामध्ये
हालचाल आहे, ऍक्टिंग आहे, मजा आहे. सो त्या रूपात जरी तुम्ही त्यांना एखादी गोष्ट, म्हणून मला आनंद वाटलो की बहुत से एनिमेशंस बनाए हैं उन्होंने इस पे माइथोलॉजिकल स्टोरीज पे. दशावतार पे भी बहुत अच्छा एनिमेशन बनाया हुआ है. सो यू शुड वॉच, यूट्यूब पे इतना सारा मिलता है. बाकी सब देखने से अच्छा यू शुड वॉच दीज एनिमेटेड स्टोरीज, यू विल एंजॉय मोर. Even इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. yeah, even recently in the lockdown, I started a mythological stories ka session. So at least I used to tell the story and they used to listen. So at least कुछ तो पता चल रहा है ऐसे. But it's really good because they should know. हाँ. And the next thing is कि you spoke, there is a concept कि like ये हमने सीख लिया, like again coming back to the Adav's part, Guru Shishya में Adav's part, this we have done or we have already learned this song, Alaripu हो गया, तो why do we need to keep on practicing it? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है. Even sometimes the parents are like, अरे ये पहले सीखा चुके हो ना, तो ये वापस क्यों ले रहे हो? Not all the parents, but there are certain parents. No, there are. See, the first thing is, आप किसी भी चीज की thoroughly practice अगर नहीं करोगे तो वो आपको अचीव नहीं होगी. आज भी मैं एक बात मानती हूँ कि Adavus, still I will say that Adavus, the basic that you learn is very, 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 very important. वो बेसिक आपके जिंदगी भर आपके काम आने वाला है. क्योंकि वॉट एवर कोरियोग्राफी, आप जो भी कोरियोग्राफी करोगे वो आप बेसिक को पकड़ के ही करोगे. नए नए कंपोजिशन सीखने को आपको पसंद है. ऑफकोर्स अभी जब मेरे को बहुत लोग पूछते हैं ऑलवेज, ताई हाउ डू यू रिमेम्बर एवरीथिंग, तुमको याद कैसे रहता है सब कुछ? कुछ भी पूछेगा तो तुमको याद रहता है. याद क्यों रहता है? ये कभी किसी ने जानने की कोशिश की? यस की. मैंने बताने की भी कोशिश की, लेकिन वो कितने लोगों ने ली है वो मुझे नहीं पता. Thing is, see, the more you keep on practicing for your own self, अभी एक फॉर एग्जाम्पल एक कीर्तनम है, वो कीर्तनम मैंने आज सीखा है, तो आज सीख के मैं आज एक दिन में मैं परफेक्ट नहीं होंगी. करेक्ट. वो कीर्तनम सीखने के लिए, मतलब मेरे आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई यूज्ड टू लर्न अंडर माय मदर्स गुरुजी. सो एक कीर्तनम सीखने के लिए मुझे 3 महीने लगते थे. 3 months. नाउ in how many days you learn? 1 week. Within a week or maximum 3 to 4 classes. But हमारे गुरुजी के ऐसे थे कि if you can't, मतलब तुमको वो पैर का मात्रा समझ में नहीं आ रहा है, तुमको पैर मारना कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, I will not teach you further. So तुम अगर शंकर श्री गिरी वही करो, तुम 4 क्लास आओ, तुम 4 क्लास में वही करो, जब तक I don't find that beat is proper. The day my Guruji said, correct, now you have practiced well and you have got that beat properly, I will proceed. तो वो मेरी खुशी अलग होती थी. वाह कि मेरे को वो बीट आ गया और मुझे अभी आगे सीखने मिलेगा. That happiness when you become perfect is different. मुझे I myself have had that problem. मम्मी को आके मैं चिट करके बोलती थी, यार तुम्हारे गुरुजी कितना घिस घिस के प्रैक्टिस लेते हैं एक चीज के लिए. 3 months. 3 months. So she said that is less for you. For her it took 6 months for one composition. She said 6 months सीखा, जब तक नहीं आता ना करो, आज आया नहीं करो. So till the time you are not perfect, they will not teach you. And then you always, एक बात मैं बोलती हूँ, वो एक हैप्पीनेस है ना तुम्हारे गुरु जब तुमको बोलते हैं ना कि नहीं आज तुमको आया है, मैं तुमको आगे सिखाऊंगा, वो हैप्पीनेस ही बहुत अलग होता है. when your guru appreciates your efforts. So nowadays children, अभी का जनरेशन कैसा है ना, they are very quick, they are very fast. So they pick up fast, which is a good thing. They pick up very fast, but they want to learn fast. उनको सब जल्दी जल्दी सीखना है. ऐसे जल्दी जल्दी सीखने से कुछ नहीं होता. You have to have patience. बिकॉज आज मैं एक बात बोलती हूँ, आज अगर आपने एक कीर्तनम सीखा है ना, तो आप उस कीर्तनम को 1 साल भर करो. मेरी बात याद रखो, जो भी देख रहे, 1 साल भर आप उस कीर्तनम को करो एंड परफॉर्म इट आफ्टर 1 year. You will see the difference in the day you learned that kirtanam, the day you completed learning that kirtanam, and the day you are performing that kirtanam after a year.
विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ये आप प्रैक्टिस अगर करना चाहते हो तो ये करके देखो। जब आप सीखते हो आपके गुरु के पास, तो आपका वीडियो ले लो खुद का। उसके बाद में आपने जब कंप्लीट उसको अपने दिमाग में फिट कर लिया, एक वीडियो ले लो। उसके बाद एक साल भर के बाद उसी परफॉर्मेंस को, लेकिन साल भर प्रैक्टिस करना है, ऐसे नहीं कि साल भर नहीं करना है, साल भर कंप्लीट प्रैक्टिस करके उसका वीडियो ले लो। देन यू विल सी द डिफरेंस इन व्हाट यू हैड लर्नड। वो कीर्तनम को आपने सीखा तभी का डिफरेंस, वो कीर्तनम को आपने माइंड में डाला तभी का डिफरेंस, और वो कीर्तनम को आपने पूरी तरह से अपने बॉडी में समा लिया, उसका डिफरेंस। सो दैट परफॉर्मेंस आफ्टर एन ईयर विल बी फ्रॉम योर सोल। Why? Because you know that particular kirtan. You are thorough with that particular kirtan. समझ में आया? तो वो भाव भी है ना उसका, आपको एक साल बाद समझ में आएगा कि नहीं, तभी मैंने किया था, अच्छा नहीं किया था। अभी जैसे हम कंपटीशन परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं, हम बहुत कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जब एक कंपटीशन में जाते हैं, खुद को सी, आई ऑलवेज से सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको सेल्फ रियलाइज होता है ना, मतलब आप ट्रू कलाकार हो। लेकिन आपको सेल्फ रियलाइजेशन अगर होता नहीं है ना, तो देन इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू बी एन आर्टिस्ट। बिकॉज आपको खुद को समझना चाहिए कि आज मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हुआ या नहीं हुआ। वॉज आई गुड टुडे और नॉट? मैंने मतलब आज मैंने ये किया, ये सिखाई हुई चीज मैंने की, लेकिन वॉज इट दैट परफेक्ट दैट द वे आई परफॉर्म? सो वो डिफरेंट। और अगर मेरा वो अच्छे से नहीं आया, तो मुझे उसमें क्या इंप्रूव करना चाहिए, इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर देना चाहिए। ये बहुत, सो आई ऑलवेज सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे रियलाइज होना है मैं अच्छा कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, ये रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। Now the thing is ki, like you said ki practice, okay, now there are students like जैसे we spoke about certain classes, I will say fake classes, जैसे कि वहाँ पे सिखाया जाता है एक I had many of the students who came from different classes, 5-6 years करने के बाद they come to know कि जतीश्वरम सीखा है, बट जतीश्वरम का राग क्या है, ताल क्या है, I don't know। अलारिपू सीखा है, अलारिपू is something that we do this way, that's अलारिपू। ओके, तो ऐसे भी होता है। यू कैन रिलेट टू दिस। आई कैन वेरी वेल रिलेट टू दिस। तो when such students come with their parents, तो when we try to guide them, बच्चे से ज्यादा मतलब the kids still have the time, hardly the kid is of 12 years 13 years, so they have a long time to learn from the basic or from the thing that they have missed out। तो but parents में सब्र नहीं होता है, they just want to complete the 7 years का कोर्स एंड खत्म करना है बस। मेरी बच्ची ने ये इतना एग्जाम दिया है, मेरे को आगे वाला एग्जाम देना है, नो मैटर व्हाट। नहीं, द थिंग इज यस ऑफ कोर्स द मेनली एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स एंड नॉट लर्निंग। मैं हमेशा बोल बोल के थक गई हूँ कि आप सीखो, पहले अच्छे से सीखो। ऐसे ही एग्जाम देके आपको वैसे भी क्या फायदा होने वाला है उससे? एग्जाम देने से भी what is that you are going to achieve, isn't it? So अभी वही होता है ना कि बाहर के क्लासेस में से आने के बाद it is so difficult for us to उनको पहले बात तो उनको समझाना कि भाई जब वो अभी आते हैं क्लासेस में से बाहर से, तो वी हैव टू टेल देम कि चलो भाई तुम कुछ करके दिखाओ। तो when they show us some of the step or some of the item डांस करके हमें दिखाएंगे, तो वो डांस देखने के बाद ऐसे लगता है कि भाई इनसे तो बेसिक भी नहीं कराया गया है। एंड देन आई गेट टू नो दैट दे हैव ऑलरेडी फिनिश्ड देयर एरोगेटर। सो ये सब जब होता है तो फिर उनको बोलने में इतना प्रॉब्लम हो जाता है कि भाई ये जो उन्होंने सीखा है इनका तो बेसिक भी नहीं है बराबर। मतलब they don't even know the speed for tatta adau properly, they don't even know what is alaripu, that they are just dancing, they have no anga shuddhi, कुछ भी नहीं है उनको। नृत्य नाट्य का मतलब पता नहीं है, they don't know anything। So how do you want me to teach your daughter or put your daughter for a senior level, which is not possible at all। तो ये एक तो मैंने मतलब पहले तो मैं बहुत ही लीनियंटली ले लेती थी कि चलो भाई आप आ गए हो तो
दे देती हूँ, मैं समझ सकती हूँ. एंड पेरेंट्स, आई ऑलवेज टेल द पेरेंट्स, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टू गो थ्रू. कि हमें भी पता है ना, इन पे वर्कआउट करना इतना आसान नहीं होता है. इट्स सो मच ऑफ एन एफर्ट टू वर्कआउट ऑन सच स्टूडेंट्स. एंड वो उतना चीज, उतना पूरा, अभी देखो, there are students who have learned for 8 to 9 years, and then they are coming to you, to a guru who is a perfectionist or who is teaching properly. तो वो गुरु तो आपको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं जब तक आपको वो परफेक्ट नहीं करेगा, वो आपको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं. सो फॉर दैट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. आपको बिगिनिंग से करना ही पड़ेगा शुरू. बेसिक ही अगर आपका कच्चा है तो आप आगे कैसे जा पाओगे. तो ये कैसा है ना नताशा, कि बहुत लोग को मतलब सम पीपल एक्सेप्टेड, सम डोंट, सम वांट टू रन बिहाइंड दोज बैनर वाला पीपल, बैनर वाला पीपल कि नहीं इनके पास तो सिखा के वो लोग अरंगेत्रम भी कराते हैं. एंड देन दे कॉल अप एंड देन दे से कि उन्होंने हमको लूटा, हमसे पैसा लिया. तो सी दैट्स व्हाट आई सेड ना, बिग शॉट पीपल. I am very openly saying this. I am not scared of anybody. So I'm openly saying this कि ये सब जो मैं देखती हूँ ना, बैनर्स लगाए हुए हैं, क्लासेस के बड़े बड़े एड्स किए हुए हैं, एंड देन दे परफॉर्म समवेयर, कहीं इंटरनेशनली परफॉर्म करके आते, कहीं में भी परफॉर्म करके आते, एंड देन दे पुट अप कि हम ऐसे किया है, हमने ये किया है. दैट मीन्स यू आर नॉट अ गुरु. यू डोंट वांट टू टीच द ट्रेडिशन. यू जस्ट वांट टू अर्न मनी एंड यू वांट स्टूडेंट्स. बिकॉज इसी के लिए आप इतने बड़े बड़े ऐड कर रहे हो कि हमारे पास 2000-3000 स्टूडेंट्स हैं एंड ऑल दिस, सो सी इट इज देयर लुक. मेरा कोई उसमें लेना देना नहीं है, बट यही प्रॉब्लम होता है कि बच्चे जब ऐसे जगह से हमारे पास आते हैं ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू उनके हाँ दिमाग में डालने के लिए. इट्स वेरी डिफिकल्ट. वो जाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. तो दैट्स द ओनली थिंग. बट आई विल जस्ट से दैट कि पेरेंट्स को थोड़ा समझे. पेरेंट्स थोड़ा जो आपको गुरु के पास अगर आप आए हो तो आप उनका पहले सुने, वो जो आपसे बात करते हैं वो आप थोड़ा समझ के करो, तो फिर आपके बच्चे का डेफिनेटली अच्छा होगा. लेकिन आप अगर अपने मन से सब कुछ डिसाइड करोगे, अपना ही बोलोगे कि गुरु को बोलोगे आप हमारे हिसाब से करो, तो ऐसा नहीं चलता. हर एक चीज की एक मर्यादा होती है ना. सो यू हैव टू फॉलो दैट. सो पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड इज व्हाट आई रियली से. In my next question again related to this, many of the classes उनका ऐसे होता है, मतलब जहाँ पे मैं क्लासेस चलाती हूँ, there are several भरतनाट्यम classes simultaneously western भी चलते हैं. तो there are उनका annual function होता है. Every year they have an annual function for which they collect 5,000-6,000 फी होती है for the annual function. ये लोग खुद ही अपना annual function host करते हैं. पेरेंट्स बड़ा हॉल बुक करेंगे, झगमग झगमग झगमगा माला बगा that type of thing goes on. So, and then what is the importance, like Bharatnatyam, if you are talking about Bharatnatyam में temple performance का कितनी महत्व है, कितना importance है, and performing like this, मतलब एक performance का भी एक standard होना. like many of the time parents का मेरी बच्ची ने यहाँ परफॉर्म किया, वहाँ परफॉर्म किया, मतलब कोई गली में परफॉर्म किया, गणपति में परफॉर्म किया, कहाँ. so परफॉर्मेंस का एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का कितना इंपॉर्टेंस होता है, टेम्पल परफॉर्मेंस का कितना इंपॉर्टेंस होता है, प्लीज एक्सप्लेन दैट. सी द थिंग इज नो, थोडासा मी वेगळं हे सांगते की द थिंग इज व्हाट, अभी तो जैसे कि वी ऑलरेडी नो द जनरेशन इज लाइक टू फास्ट. मोर देन द जनरेशन एक्चुअली पेरेंट्स ज्यादा एंथुजियास्टिक है. पेरेंट्स आर मोर एंथुजियास्टिक. कैसे इन सम केसेस ना पेरेंट्स का ऐसा हो गया कि हम नहीं कर सके तो हमारी बच्ची को करना. ओके, मतलब मेरे पास बहुत पेरेंट्स आके बोलते, मैम मुझे ना सीखना था, मेरे को बहुत इच्छा थी सीखने की, लेकिन क्या हो गया ना, मेरे को घर में परमिशन नहीं था, वो नहीं था, तो मैं मेरी बच्ची को सिखाना चाहती. हालांकि वो बच्ची बिल्कुल ही डांसर बनने के काबिल नहीं है. तो बहुत बार मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ कि आई ऑलवेज टेल देम, सी you are spending so much of money, don't do it. She is not even interested in dance. She is interested in some other hobby, या फिर उसको वेस्टर्न डांस में इंटरेस्ट है. सी वन थिंग आई वांट टू से, वेस्टर्न कल्चर, जो वेस्टर्न डांस है या जो ये वेस्टर्न स्टाइल्स है ना, बॉलीवुड है, फिल्मी आपका है, ये हिप हॉप है, these styles are not bad.
these styles are not at all bad. I will not say these are bad because I have my friends, some of my friends who are teaching this art, these styles such a nice way. तो जैसे जैसे आप बोलते हो कि भरतनाट्यम में अच्छा गुरु मिलना जरूरी है, उसी तरह ये सब स्टाइल सीखने के लिए भी कोई अच्छा ट्रेनर होना, अच्छा गुरु मिलना जरूरी है. हर चीज में एक अच्छा गुरु मिलना ही जरूरी है. अभी जैसे जैसे हमारा, जैसे मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बोला कि ये सब क्लासेस की एडवर्टाइज होती है, तो दे डू ऑल दीज थिंग्स. सेम वे दीज वेस्टर्न वाला जो क्लासेस लेते चलाते हैं, तो नेचुरली बच्चे ज्यादा हिंदी म्यूजिक को अट्रैक्टेड है अपने इधर, बिकॉज वो म्यूजिक में जो दम है, डन 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 चिक चिक, तो पीपल एंजॉय दैट म्यूजिक मोर, बिकॉज उस पर तुरंत आप देखो पैर चलने लगते, यू नो. जैसे मैंने देखा अपने महाराष्ट्रियंस में जो कोली जमात है, तो कोली जमात में मैं एक प्रोग्राम में आई वेंट एज अ गेस्ट ओवर देयर एंड आई सॉ वो नकवा बोटी न, जैसे गाना शुरू हो गया ना, द लेडीज, माय गॉड, द लेडीज स्टार्टेड डांसिंग लाइक पूरा अपना सब कुछ भूल भाल के स्टार्टेड डांसिंग. सो यू नो सम म्यूजिक यू हैव जिसमें आपके पैर अपने आप चलने लगते. तो उस तरह से ये वेस्टर्न कल्चर का ऐसे ही हो गया है ना, इन्फ्लुएंस हो गया. कह रही है ये सुनो, ये करना है, करने की इच्छा, करने में बुरा नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि गुरु, उसमें भी अगर आपको अच्छा गुरु मिले तो ये. हाँ, और अभी जैसे तुमने मेरे को बोला ना, पेरेंट्स बोलते हैं मेरी बच्ची ने इधर किया, मेरी बच्ची ने, क्योंकि वाई दे आर सेइंग लाइक दिस, बिकॉज पेरेंट्स को वो समझ नहीं है ना अपनी बच्ची क्या कर रही है. वी एज अ गुरु, वी आर टीचिंग, वी नो व्हाट दैट किड इज डूइंग, करेक्ट. अभी एज अ गुरु तुरंत एक बच्चे को देख के पता चल जाता है ना कि उसका पोटेंशियल क्या है. When you see a particular student, you will say that no, this girl is इसमें ये पोटेंशियल है, ये बच्ची ये कर सकती है. तो हम कोशिश, आप देखोगे, देखो 25 बच्चों का हमारा बैच है, 25 बच्चे क्लास में खड़े हैं, लेकिन उसमें से 10 बच्चे आपको बहुत अच्छा करते हुए दिखेंगे. नॉट ऑल 25 विल डांस दैट वेल, करेक्ट. सबके सब तो उतने नहीं, हर एक का साइकोलॉजी अलग होगा. सो बट डेफिनेटली दोज 10 किड्स विल डांस प्रॉपरली, है ना. तो ये पेरेंट्स का कैसे होता है ना, अभी मैं कितनी बार सुनती हूँ, मैम आपको पता है मेरी बच्ची ने ना वो उसके मामा के संगीत में कोरियोग्राफी किया. कोरियोग्राफी, व्हाट डू यू मीन बाय कोरियोग्राफी? आई हैव नेवर अंडरस्टूड दिस. पेरेंट्स टेलिंग मी उसने पूरा कोरियोग्राफ किया. एंड देन आई टेल देम, आई स्पेसिफिकली टेल देम, आप एक काम करो, बच्चे को मेरे सामने डांस करके बता. ये बहुत पेरेंट्स मुझे बोलते हैं ना, जब भी मेरी बच्ची ने कोरियोग्राफी की. I have never understood the concept of choreography. According to them, what is choreography? I don't know. They only know the word. Okay. But when I see that kid dancing that choreography, वो कुछ और ही कर रहा है, and और भी जाने दो, वो तो entirely whatever that film में डांस दिखाया है, वो फिल्म का डांस का ही कॉपी वो बच्चा कर रहा है. And that kid is dancing and teaching to जिसका मामा मामी जो है उनको सिखा रहा है. बट पेरेंट्स, नहीं आपको नहीं मालूम मैम, मेरी बेटी ने कोरियोग्राफी की. मैं मतलब यही होता है ना कि व्हेन पेरेंट्स डोंट हैव अ प्रॉपर नॉलेज, उनको अगर उसकी समझ नहीं होती तो फिर यही होता है, मेरी बच्ची कोरियोग्राफर है बन जाती है, यही प्रॉब्लम होता है. सो पेरेंट्स ने बच्चों को कहा, वो बोलते ना आपण म्हणतो समतोल ठेवायला पाहिजे. निदान पालकांनी एवढं तरी केलं पाहिजे की निदान टीचरला विचारा ना की माझी मुलगी करू शकते का. आणि गल्लीत नाचलं म्हणजे मुलगी नाचली असातला भाग नाहीये. तुम्ही ऑडियन्स बघितलात का कसा आहे, हा पण विचार करा ना तुम्ही. आप वो भी देखो, अगर आप कहीं परफॉर्म कर रहे हो तो ऑडियंस कैसा है. ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ योर चाइल्ड इज गेटिंग द अप्रिसिएशन, isn't it? So nowadays I see parents are also ready कि बच्चों, छोटे बच्चे भी हो, कैसे भी कपड़े बच्चे को पहना देते. They are okay with it. And especially the fathers have no objection, the mothers are very happy to do that. छोटे कपड़े पहनाने पर सी मेरा ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन फिर कल कुछ भी होता है फिर आप उसके पीछे मत चलिए कि ऐसा. एंड जैसे होता है ना कि अभी वो मेरी बच्ची वेस्टर्न भी सीखती है, बहुत बार ऐसे हुआ है मेरी बच्ची वेस्टर्न सीखते सीखते उसी क्लास के इतना सा कपड़ा पहन के, चड्डी इतना सा पहन के शी केम टू माई क्लास. देन आई वोंट अलाउ हर because mine is a different class and that is a different class. So that parents should understand कि वहां पे कपड़ा पहन के जो इधर मेरे क्लास में तुम लेके आते, that is wrong. ये
जे डिस्टेंस है वो पेरेंट्स ने मेंटेन करना चाहिए. लाईक यू सेड ना, बट आता असं झालंय की लाईक वेस्टर्न क्लासेस, वेस्टर्न ऑल्सो हैज अ बेस. म्हणजे इफ यू टेक वेस्टर्न हैज कम फ्रॉम फॉरेन, तो फॉरेन में जो इंस्टीट्यूट है, द बेसिक दैट दे फॉलो एंड द बेसिक ईयर यहाँ पे जो सिखाते हैं, यहाँ पे दे डायरेक्टली गाना लगाया इन अ फुल वॉल्यूम, दे स्टार्ट dancing. So, and parents are getting attracted, kids are getting attracted to this falsehood. Yes, they are. You know, once I was थाना गडकरी रंगायतन में रिहर्सल हॉल है ना, वहां पे क्लासेस चलते थे वेस्टर्न के. वहां पे कंटिन्यूस क्लासेस चलते थे वेस्टर्न ये वो. तो once I saw there was a class, so it had lot of students. I mean, there was a class of my friend who had almost 50 to 80 स्टूडेंट्स पकड़ के चलो. और एक क्लास जो उसके बाद में चलता है उसके पास 300-400 स्टूडेंट्स है. ओके, ईच बैच, उनके ईच बैच में 50-60 बच्चे तो आराम से खड़े रहते थे. तो मैं एक दिन ऐसे मेरे फ्रेंड को बोला, यार मेरे को ना, आई वाज ऑलवेज अट्रैक्ट, मुझे ये सब स्टाइल्स देखने में बहुत हमेशा अच्छा लगता था, वेस्टर्न स्टाइल्स, एंड आई स्टिल लव. तो आई व्हाटएवर, मैं थोड़ा बहुत वेस्टर्न का नॉलेज जो भी लिया मेरे फ्रेंड से, आई यूज्ड टू गो एंड वॉच. ही वाज, बिकॉज ही हैड लर्न फ्रॉम रशिया, सो आई यूज्ड टू लाइक टू वॉच हिम. तो आई स्पेसिफिकली सेड कि आई वांट टू वॉच दिस नेक्स्ट वाला क्लास, यार मैं देखूं क्या. तो बोलता है देख. माय गुडनेस, आई सॉ, ओके, जिसका नाम है वो तो क्लास में नहीं है, ऑफ कोर्स वो गुरु है, बड़े गुरु है, एनीवे बड़े गुरु है, ओके. बट द चिल्ड्रन इतने 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 चिट्टू बच्चे, 3 साल के, 4 साल के, तो चिट्टू पिट्टू बच्चे. और चालू किया म्यूजिक ऑन, एंड द वे दे आर डांसिंग, अरे बाप रे, मुझे तो स्कूल की पीटी में और इनके डांस में कुछ फर्क ही नहीं लग रहा है. यही कर रहे, ढाम 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 ढाम, और पूरा लाउड म्यूजिक चल के दे आर जंपिंग एंड शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग एंड 1 2 3 4 5, दे आर स्क्रीमिंग एंड डूइंग नथिंग. पीछे का चिंटू सा बच्चा क्या कर रहा है, कुछ नहीं. पेरेंट्स बाहर खड़े हैं. मुझे यही सबसे मतलब मजा लगता है कि पेरेंट्स आर स्टैंडिंग आउट, दे आर वॉचिंग दिस, ऑल दिस थिंग हैपनिंग, मतलब जो भी चल रहा है विंडो से देख रहे, लेकिन कोई पेरेंट बोलने नहीं जाता है. एंड दे आर पार्टिसिपेटिंग इन देयर प्रोग्राम्स. जस्ट लाइक यू सेड, दे आर पेइंग 5,000-6,000. रविंद्र जी, what is happening? Only jumping, aerobics, and they, और उस स्टाइल को वो नाम देते हैं कि ये हिप हॉप है, ये है. क्या कर रहा है हिप हॉप, 1 2 3 4, बस. मतलब आई वाज सो, मतलब क्या कहूँ, मुझे बहुत हंसी चली. रविंद्र में भी the parents are standing out, kids are jumping inside, loud music is going on, and that's done. That's really bad. That's really bad. So that's the very bad thing that is happening. That's what I said. It is like a jackpot. Getting a good guru is like a jackpot. Again, coming back to the जैसे we said कि how important it is to know the raga and tala. Composer, म्हणजे खूपदा असं होतं की स्टुडंट्स सेट की बाहर से आते, यतीश्वरम सीखा, नो राग नो ताल, हु इज द कंपोजर. कंपोजर होता क्या है? So how important it is to know this thing, and whenever you are doing padam or kirtanam or any type of dance which has abhinaya, what is the importance of abhinaya? Because abhinaya करते वक्त ऐसे मुंह बनाते हैं जैसे we are like some kind of aliens are dancing. Correct. Yes, of course, definitely. When you are learning and you are performing, अभी देखो जैसे कि हम एग्जाम करिकुलर फॉलो कर रहे हैं, एग्जाम भी नहीं दे रहे हो, तो भी अगर आप जो स्टाइल सीख रहे हो ना, तो वॉट एवर कंपोजिशन यू आर लर्निंग, यू शुड नो व्हाट कंपोजिशन यू आर लर्निंग, इजंट इट? कि अगर आप कोई कीर्तनम सीख रहे हो, कोई पद सीख रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वो किसका है, राइट? जैसे आप मतलब अगर आपको मालूम नहीं है कि who is the author, who is the composer of that song, then what is the point in learning, isn't it? It's completely pointless. And like Bharatanatyam में मैं हमेशा बोलती हूँ, we are using so many languages.
using Tamil तो ऑफकोर्स मेन है because it becomes एक मिनट, this video is going to go off because we have timing होता है. I'll be doing the second